Good morning, everyone. So, last lecture we have started with underwriting commission of shares and debentures. Today we will start with the practical sums. As I had told you yesterday also, this is a easy chapter and this is not very lengthy as compared to amalgamation. So now today let us solve these sums. So in this sum, what we have to do is we have to find out the liability of the underwriter. So before starting with the sum, let us see what is there in liability of underwriters. Liability of underwriters. So particular. Now I'm just showing a small one just to make you all understand. So here, firstly, we have to write the gross liability. Now, what is the gross liability? Gross liability refers to the contract to which each underwriter he has to sell some specified number of shares to the public. So that is the gross liability. So gross liability includes like the shares which have will be subscribed by the public as well as the see what will the underwriter do underwrite from the gross liability some of the shares will be sold to the public and remaining share of the will have to be purchased by the underwriter. So gross liabilities include both the number of shares which has to be subscribed by the public and which has to be the remaining left one shares which has to be purchased by the underwriter. So that is the gross liability. From gross liability, what we will do, less applications. So यहाँ पे we can to be more specific we can say marked applications. Now what is the marked applications? Marked applications are those applications which have the stamp which bear the stamp with the name of the underwriter. So marked applications are those applications which bear the stamp with the name of the underwriter. So इसमें से हम ये लेस कर देंगे तो इसके बाद we will have the balance. ये बैलेंस में से हम लेस करेंगे unmarked applications. Now, what is unmarked applications? Unmarked application do not bear the stamp of the underwriter. So, इसमें underwriter का कोई भी stamp नहीं है. So, less करना है. So, I will show it in the bracket. So, इसके बाद हम क्या लेंगे इसके बाद हम अभी शॉर्ट में देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स आल्सो व्हिच आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन. नाउ वी गेट द net liability. So now what is the net liability? Net liability means this is the liability, this is the number of shares which has to be by which
See, these are the number of shares which has to be purchased by the underwriter. So, this refers to the number of shares to be taken by each underwriter when the public has not subscribed for the same. So net liability refers to the number of shares that has to be taken by each underwriter when the public has not subscribed to the same. So it is also known as such securities are said to have devolved on the underwriter. इसको बोलते हैं ये जो सिक्योरिटी है ये अंडरराइटर के ऊपर डिवॉल्व हुआ है. ये वो शेयर्स है जो पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया, एंड बिकॉज द अंडरराइटर गिव्स द गारंटी दैट इतना शेयर सेल करके देगा, सो द नंबर ऑफ शेयर्स वो जितना सेल करके देगा उसमें जितना नंबर ऑफ शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया दैट हैज टू बी परचेज बाय द अंडरराइटर. सो इट इज ऑल्सो नोन एज डिवॉल्व्ड on the underwriter. These shares are devolved on the underwriter कि ये underwriter को pay करना पड़ेगा. So with this is a small format which there is an extension also to this format, but by now we will only see this much. When we move ahead with the other type of sum, we will see the additions to this format. यहाँ पे if you want to ask anything, you can put it in your chat box. Now we will see with the help of the sum, you will be able to understand in a better way. So let us do our first sum. R Limited issued 1,12% debentures of rupees 10 each. See, yesterday I had told you that I will share one format with all of you that I will do right now. Just give me 1 minute. Are you all able to see this? See, yesterday I had told you that as per the Companies Act, जो कमीशन पे होता है अंडरराइटर्स को वो 5% है. सो कंपनीज एक्ट के हिसाब से इट इज 5% कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन allow according to Companies Act it allows up to 5%, but the SEBI, according to SEBI, what is the percentage? According to SEBI, the percentage is for equity shares. It is 2.5%. इक्विटी शेयर्स के लिए कितना परसेंटेज है? 2.5% on both devolving amount that is devolving on underwriters and amount which is subscribed by public. Now ये दोनों में क्या फर्क है? devolving और subscribed by public मतलब जितना ग्रॉस लाइबिलिटी होता है अंडरराइटर के ऊपर, ग्रॉस लाइबिलिटी मतलब क्या? इतना मिनिमम शेयर्स अंडरराइटर को सेल करना है, दैट इज द ग्रॉस लाइबिलिटी. व्हाट इज द ग्रॉस लाइबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर? कि ही हैज टू सेल दिस मेनी नंबर ऑफ शेयर्स इज द ग्रॉस लाइबिलिटी. एंड ग्रॉस लाइबिलिटी में जितना शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब किया वो उस पे अंडरराइटर को 2.5% का अंडरराइटिंग कमीशन मिलेगा. Getting my point? What is the gross liability? Gross liability means इतना number of shares अंडरराइटर को सेल करना है. What is the gross liability? इतना shares सेल करना है is the gross liability. उसमें से जितना शेयर्स पब्लिक ने परचेज किया, सब्सक्राइब किया, उसके ऊपर इक्विटी शेयर है तो 2.5% का कमीशन मिलेगा. और ग्रॉस लाइबिलिटी में जितना शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया वो अंडरराइटर को खरीदना पड़ेगा. उसको बोलते डिवॉल्व. उसको क्या बोलते हैं?
अमाउंट डिवॉल्विंग ऑन द अंडर राइटर, इतना जितना पब्लिक ग्रॉस लाइबिलिटी में जितना पोर्शन पब्लिक परचेस नहीं करती वो अंडर राइटर को खरीदना है, तो उसके ऊपर भी अंडर राइटर को इक्विटी शेयर में 2.5% का कमीशन मिलेगा. नाउ टू अंडरस्टैंड हु इज द अंडर राइटर, हु गारंटी द दिस मनी शेयर्स, वो सेल करके देगा. अगर उसने सेल नहीं कर पाया तो वो खुद उतना शेयर खरीद लेगा. तो जितना शेयर अंडर राइटर ने खुद खरीदा है दैट इज डिवॉल्विंग, तो उसके ऊपर उसको 2.5% का कमीशन मिलेगा. एंड प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर रहेगा तो अप टू द अमाउंट ऑफ 5 लाख, अगर जो शेयर इशू है वो 5 लाख तक का अमाउंट है तो जो पब्लिक ने खरीदा उसके ऊपर 1.5% का कमीशन, जो पब्लिक ने खरीदा उसके ऊपर 1.5% का कमीशन, एंड जो उसने खुद ने खरीदा उसके ऊपर 2.5% का कमीशन. समझ में आया? फॉर अमाउंट अप टू 5 लाख उसके ऊपर 1.5% कमीशन जो पब्लिक ने खरीदा, एंड 2.5% कमीशन जो उसने खुद ने खरीदा. एंड अमाउंट विच इज एक्सीडिंग 5 लाख, अगर इशू इज मोर देन 5 लाख तो पब्लिक ने जो खरीदा उस पर 1% का अंडर राइटिंग कमीशन मिलेगा, एंड जो खुद ने खरीदा उसके ऊपर 2 लाख का अंडर राइटिंग कमीशन मिलेगा. समझ में आया? जो पब्लिक ने खरीदा उसके ऊपर इफ अमाउंट इज मोर देन 5 लाख, जो पब्लिक ने खरीदा उसके ऊपर 1%, एंड जो पब्लिक ने नहीं खरीदा तो खुद को खरीदना पड़ रहा है उसके ऊपर 2% का कमीशन मिलेगा. सो सी हियर दे हैव टोल्ड amount of net liability for securities required to be taken up by the underwriter is known as the amount devolved on the underwriter. Means जो हमारे gross liability में जितना shares या डिबेंचर जो अंडरराइटर खुद परचेस करता है उसको बोलते हैं अमाउंट डिवॉल्व ऑन द अंडरराइटर. तो द portion, the securities which the underwriter is purchasing himself is known as amount devolved. So the maximum underwriting commission is 2.5%, but the Companies Act allows 5%. तो हम क्या करते हैं, दोनों में से जो भी लोअर होगा हम वो रेट एक्सेप्ट करेंगे, बट नॉर्मली इट इज 2.5% मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू सेबी, एंड कंपनीज एक्ट अलाउस अप टू 5% कमीशन. सो now let us start with the first sum. R Limited issued 1,12% debentures of rupees 10. 1 lakh into 10 is 10 lakh. 1 lakh number of debentures है, एंड एक डिबेंचर का वैल्यू है 10 रुपीज एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%. तो 10 रुपीज का 10% डिस्काउंट इज 9 रुपीज. तो 1 लाख इंटू 9 इज अगेन 9 लाख. तो डिबेंचर का वैल्यू तो 10 लाख रहेगा. ऑन द फेस वैल्यू पे हमें डिस्काउंट मिलने वाला है 10% का. 10 रुपीज का 10% इज 1 रुपी, मीन्स 1 रुपी का डिस्काउंट है. द होल issue was underwritten by Mrs. A and Company. So who is the underwriter? Underwriter is A and Company. Underwriter कौन है? Underwriter है A and Company, और कंपनी का नाम है जो अपना शेयर सेल करना चाहता है, नॉट शेयर, डिबेंचर. जो अपना डिबेंचर सेल करना चाहता है वो कंपनी का नाम है आर लिमिटेड. वो कंपनी का नाम है आर लिमिटेड, एंड 12% डिबेंचर डिस्काउंट में सेल करना है फॉर द मैक्सिमम कमीशन एज परमिटेड बाय द लॉ.
So applications for 90,000 debentures were received in all. Application कितना shares के लिए मिला? Application 90,000, not share. I'm again sorry, मेरे मुंह से shares आ रहा है. Application for 90,000 debentures were received in all. टोटल 1 लाख डिबेंचर्स खरीदना था और पूरा डिबेंचर खरीदने का जिम्मेदारी किसको मिला? एन कंपनी. अंडर राइटर इज एन कंपनी. 1 लाख शेयर सेल करने का जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी वॉज गिवन टू मिसेस आर एन कंपनी. एंड हु हैज गिवन दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी? आर लिमिटेड हैज गिवन. एंड कंपनी को कितना एप्लीकेशन मिला? 90,000 डिबेंचर्स का एप्लीकेशन मिला. तो वी विल हैव टू डिटरमाइन द नेट लाइबिलिटी ऑफ मिसेस ए एंड कंपनी एंड द कमीशन पेएबल टू देम एज पर लॉ. तो हमें क्या निकालना? एक तो हमें नेट लाइबिलिटी अंडर राइटर का निकालना है. एंड सेकेंड, हु इज द अंडर राइटर? एन कंपनी. एंड हमें निकालना है व्हाट विल बी द कमीशन पेएबल टू देम एज पर लॉ. What will be the commission payable to them as per law? So let us calculate the statement showing the liability of Mrs. A and company. Mrs. A and company. So यहाँ पे particulars and this is the number of shares. तो यहाँ पे सबसे पहले ग्रॉस लाइबिलिटी. मिस्टर ए को कितना शेयर सेल करना है? मिस्टर ए हु इज द अंडर राइटर, उसको कितना शेयर सेल करना है? देखो कितना नंबर ऑफ शेयर है सेल करने के लिए? कितना नंबर ऑफ शेयर है सेल करने के लिए? दिस इज द ग्रॉस लाइबिलिटी. दिस इज द ग्रॉस लाइबिलिटी. सो ग्रॉस लाइबिलिटी है 1 लाख और यहाँ पे पूरा 1 लाख शेयर्स मिस्टर ए को सेल करना है. तो जितना शेयर सेल करना है उतना ग्रॉस लाइबिलिटी है मिस्टर ए का. मिस्टर ए का लाइबिलिटी कितना है? ही हैज टू सेल 1 लाख शेयर्स. मिस्टर ए का लाइबिलिटी कितना है? ही हैज टू शेयर 1 लाख शेयर्स. बट इसमें से हम लेस करेंगे कितना? पब्लिक ने कितना शेयर सेल कर लिया? टोटल एप्लीकेशंस रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक. इतना शेयर पब्लिक ने, इतना डिबेंचर, आई एम सॉरी, इतना नंबर ऑफ शेयर्स नहीं आना चाहिए ना. दिस इज डिबेंचर्स, number of debentures, because it is debenture and I am getting again and again shares is coming from my mouth. So total number of applications received from the public. कितना एप्लीकेशन मिला? 90,000. So कितना नेट लाइबिलिटी हुआ? What is the net liability? Net liability means amount devolved. कितना जो मिस्टर ए है उसके ऊपर कितना डिवॉल्व हुआ? उसके ऊपर how much has been devolved? I'm sorry. How much has been devolved on the underwriter?
देखो जितना एप्लीकेशन मिला वो उसको अंडरराइटर को खरीदने का ज़रूरत नहीं है। जितना डिबेंचर्स पब्लिक ने खरीदा वो अंडरराइटर को खरीदने का ज़रूरत नहीं है। अंडरराइटर को बैलेंस अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स खरीदना पड़ेगा। टोटल देयर वाज 1 लाख डिबेंचर्स विच मिस्टर A had to, Mrs. A and company had to purchase, but public ने 90,000 debentures खरीद लिया। So what is the net liability? Net liability यहाँ पे मैं सिर्फ devolved लिख लेती हूँ। So devolved है how much? 10,000. So how much is the devolved? Devolved is 10,000. Devolved is 10,000. अभी हमें पूछा था नेट लाइबिलिटी, हमने नेट लाइबिलिटी निकाल लिया। 1 लाख खरीदना था जिसमें 90,000 पब्लिक से मिल गया एप्लीकेशन, तो मिसेस ए एन कंपनी को अभी 10,000 डिबेंचर खुद से खरीदना पड़ेगा। तो उसको कमीशन कितना मिलेगा? लेट अस सी। ऑन amount devolved on the underwriter, on amount devolved on the underwriter। तो अब हम यहाँ पे क्या निकाल रहे? नेक्स्ट हम निकाल रहे कमीशन पेबल। कैलकुलेटिंग द underwriting commission, calculating the underwriting commission। So और ये क्या है? यहाँ पे हमने जब डिस्कस किया था तो 2 कैटेगरी है, एक विच इज बिलो 5 लाख, अमाउंट बिलो 5 लाख, एंड दूसरा होता है अमाउंट एक्सीडिंग 5 लाख। तो यहाँ पे ऑन इशू एक्सीडिंग 5 लाख, एक्सीडिंग रुपीज 5 लाख कैसे पता चला? देखो 1 लाख शेयर है, 1 मिनट, 1 लाख डिबेंचर्स इंटू 9 या 10 जो भी हो, ये 9 लाख होता है, विच इज मोर देन 5 लाख। सो इसका मतलब ये हमें अंडरराइटिंग कमीशन उस अमाउंट पे कैलकुलेट करना है इफ द अमाउंट इज मोर देन 5 लाख। 1 मिनट, लेट अस अगेन सी दैट। सी हियर, ऑन अमाउंट इशू अमाउंट अप टू 5 लाख में 2.5% डिवॉल्व में होता है एंड 1.5% पब्लिक सब्सक्रिप्शन में। तो ये है इशू अमाउंट एक्सीडिंग 5 लाख, बिकॉज 1 लाख शेयर इंटू 10 या 1 लाख शेयर इंटू 9 इज मोर देन 5 लाख। तो डिवॉल्व में 2% का कमीशन मिलेगा और दूसरे वाले में 1% का कमीशन मिलेगा। जो पब्लिक ने खरीदा है उसके ऊपर 1% का कमीशन मिलेगा। So now what we will do, now we will start with the sum. So here devolved में निकालते हैं, devolved में कितना परसेंट कमीशन? 2% कमीशन निकालना पड़ेगा ऑन द इशू प्राइस कितना है? इशू प्राइस है ₹9, बिकॉज डिस्काउंट दे रहे 1 रुपीज का। ऑन हाउ मेनी डिबेंचर्स? ऑन 10,000 डिबेंचर्स, ऑन 10,000 डिबेंचर्स। सो 10,000 see here they have told डिबेंचर का इशू प्राइस कितना है? एक डिबेंचर 10 रुपीज का है और 10% का डिस्काउंट है, तो ये 9 रुपीज कैसे आया मैं बताती हूँ। 10 रुपीज का डिबेंचर है, फेस वैल्यू इज 10 रुपीज माइनस डिस्काउंट ऑफ 10%,
discount 10% is giving me the issue price of ₹9 on 10,000 debentures. So ये हो जाता है 10,000 into 9 into 2%. ये कितना होता है? 10,000 into 9, 10,000 into 9 into 2% is coming how much? 10,000 into 9 into 2% is coming how much? It is coming 1800. Same way हमें सेकेंड निकालना है on amount subscribed by public, on amount subscribed by. So here we saw that on the devolved amount, what do you mean by devolved? Devolved are those is a liability, मतलब पब्लिक ने शेयर्स नहीं परचेस किया तो ये वो लाइबिलिटी अंडर राइटर के ऊपर आ जाता है कि उसको वो शेयर्स या डिबेंचर्स परचेस करना पड़ेगा. सो ग्रॉस लाइबिलिटी इज द टोटल लाइबिलिटी इन द ऑन द अंडर राइटर एंड नेट लाइबिलिटी रेफर्स टू द लाइबिलिटी. पब्लिक ने जो शेयर्स या डिबेंचर्स परचेस नहीं किया तो अभी वो बचा हुआ किसको परचेस करना पड़ेगा? अंडर राइटर को. अंडर राइटर विल हैव टू परचेस इट. तो हमने अंडर राइटर को जो परचेस करना है उस पे बिकॉज द इशू इज एक्सीडिंग 5 लाख उसको 2% का कमीशन ही मिलेगा, नहीं तो 2.5% होता है, अभी 2% ही मिलेगा. सो दूसरा वो हमने कैलकुलेट कर लिया. 9 रुपीज क्यों निकाला? बिकॉज 10 रुपीज का फेस वैल्यू है बट इशू प्राइस 9 रुपीज है बिकॉज 10% का डिस्काउंट है. नाउ वी विल से ऑन सी ऑन अमाउंट सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक. अमाउंट सब्सक्राइब बाय द पब्लिक 1%. इस पे कमीशन मिलता है 1%. 1% on issue price of ₹9. ये ₹9 कैसे आया? डिस्काउंट के ऊपर ऑन कितना डिबेंचर? 90,000 डिबेंचर जो पब्लिक ने अप्लाई किया, एप्लीकेशन दिया है, उसके ऊपर अंडर राइटर को कितना कमीशन मिलेगा? 90,000 इंटू 9 इंटू कितना परसेंट? 1%. So how much is this coming to? This is coming to 8,100. So total commission कितना मिलेगा अंडर राइटर को? टोटल कमीशन पेएबल to the underwriter equal to 8,100 plus 1,800 is equal to ₹9,900. With this sum is done. So now let us do the next sum. A Limited issued 5,000 debentures at 14% of ₹100 each at a premium of 5%. यहाँ पे इशू प्राइस क्या हो जाएगा? ₹100 का डिबेंचर है और 5% का प्रीमियम है, तो 100 का 5% is ₹5. So ₹105 is the issue price. 80% of the issue was underwritten by Mrs. B and Company at a commission legally permissible on the issue price of the debenture. यहाँ पे जो लाइबिलिटी है, ग्रॉस लाइबिलिटी है अंडर राइटर के ऊपर, वो सिर्फ 80% है. इट इज हाउ मच? ओनली 80%. जो 5,000 शेयर्स है वो पूरा अंडर राइटर को सेल नहीं करना है, उसको सिर्फ 80% ही सेल करना है. अंडर राइटर को सिर्फ 80% सेल करना है. द अंडर राइटर हैज टू सेल only 80%. Underwriter has to sell only 80%. So underwriter के ऊपर कितना लाइबिलिटी है, ग्रॉस लाइबिलिटी, कि उसको 5,000 का 80% शेयर ही सेल करना है. तो यहाँ ये सम में
पूरा 10,000 अंडर राइटर को सेल करना था, बट जो सेकेंड सम है उसमें अंडर राइटर का लाइबिलिटी इज ओनली 80% ऑफ द इशू। तो 5,000 डिबेंचर में उसको सिर्फ 80% सेल करना है। सो कमीशन विल बी पेड एज पर लीगली परमिसेबल। नेक्स्ट, एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर ओनली 4,000 डिबेंचर्स। तो एप्लीकेशन कितने डिबेंचर्स के लिए मिला? 4,000 डिबेंचर्स के लिए। एंड these were fully allotted. All the money due from the allottees were received in one installment. Prepare the statement showing liability of Mrs. B and company. Underwriter का liability निकालना है। एंड सेकेंड हमें निकालना है कंप्यूट द अंडरराइटिंग कमीशन रिसीव्ड एज पर लॉ। तो यहाँ पे लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट, शो द स्टेटमेंट showing the liability of Mrs. B and कंपनी। ये अंडरराइटर का नाम है। तो इसमें हमें क्या दिखा, लेट अस insert the column particulars and then the number of debentures. Particulars and then is number of debentures. तो यहाँ पे सबसे पहले हमें चाहिए ग्रॉस लाइबिलिटी चाहिए। तो ग्रॉस लाइबिलिटी कितना है? 5,000 डिबेंचर का कितना रेस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर ऑन द अंडरराइटर टू सेल? ओनली 80%। पिछले सब में ऐसा नहीं था, पूरा का पूरा डिबेंचर्स अंडरराइटर को ही सेल करना था। यहाँ पे अंडरराइटर हैज बीन अपॉइंटेड विद 80% ऑफ द इशू, उसको अंडरराइट करना है। सो 5,000 का 80% निकालो, 5,000 का 80% निकालो। इट इज कमिंग टू 4,000 डिबेंचर्स। इसमें से कितना एप्लीकेशन मिला? लेस एप्लीकेशंस रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक। कितना एप्लीकेशन मिला? टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुआ 4,000 डिबेंचर्स का। तो 4,000 का मिला, लेकिन ये 4,000 में क्योंकि यहाँ पे कुछ भी दिया नहीं है कि कितना मार्क्ड एप्लीकेशंस है, क्योंकि यहाँ पे एक ही अंडरराइटर नहीं है, सेकेंड अंडरराइटर देखो 80% का जिम्मेदारी हैज बिकम टू बी एन कंपनी। तो रिमेनिंग जो 20% है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के ऊपर आता है, ए लिमिटेड के ऊपर। तो ऐसे सिचुएशन में दिया होना चाहिए कि मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है। तो ये दिया होना चाहिए अंडरराइटर का नेम स्टैंप कितने एप्लीकेशंस में लगा हुआ है। अगर नहीं दिया तो हमें जो परसेंटेज दिया है, जितना भी एप्लीकेशन पब्लिक से आया है उस पे जो परसेंटेज दिया है हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 4,000 इंटू 80% कितना आता है? 4,000 इंटू 80% हमें आता है 3,200। सो कितना, इतना पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया 3,200। सो हाउ मच इज द नेट लाइबिलिटी ऑन द अंडरराइटर? अंडरराइटर के ऊपर कितना लाइबिलिटी आ गया? 800 डिबेंचर्स अंडरराइटर को खरीदना पड़ेगा। नाउ वी विल फाइंड आउट द कमीशन। सो उसके लिए कैलकुलेटिंग द अंडरराइटिंग कमीशन on issue up to 5 lakh, up to rupees 5 lakh। देखो यहाँ पे
4,000 शेयर्स है ना यहाँ पे, इशू इज of 5 lakh, issue is up to 5 lakh because number of shares is 5 lakh, 5 lakh into 100 भी करेंगे, 5,000 into 100 करेंगे तो it is coming 5 lakh। तो ये इशू है up to 5 lakh का, 5,000 into 100 किया तो it is coming to 5 lakh। तो ये इशू है 5 lakh का, ये इशू कितने का है, अप टू 5 लाख का। तो हम दूसरा वाला परसेंटेज यूज करेंगे। सो सबसे पहले लेट अस सी अमाउंट डिवॉल्व्ड, अमाउंट डिवॉल्व्ड ऑन द अंडरराइटर, अमाउंट डिवॉल्व ऑन द अंडरराइटर। कितना कितना अमाउंट डिवॉल्व हो गया है, 800 इंटू 105। कैसे 105 मिला, 5 रुपया प्रीमियम का, इंटू कितना परसेंट है, परसेंट है 2.5%। कितना परसेंट है, 2.5%। तो देखो कितना आ रहा है, हाउ मच इज इट कमिंग, 800 इंटू 105, 800 into 105 into 2.5%. How much is it coming? It is coming to rupees 2,100। कैसे 105 मिला, बिकॉज 5 पर इशू प्राइस में 5% का प्रीमियम है। नेक्स्ट हम दिखाएंगे अमाउंट विच इज सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। कितना सब्सक्राइब हो गया, 4,000 इंटू 4,000 नहीं सॉरी, कितना पब्लिक से खरीदा, पब्लिक से खरीदा 3,000। यहाँ पे देखो एप्लीकेशन फ्रॉम पब्लिक, कितना सब्सक्रिप्शन हुआ, पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया, 3,200। टोटल 4,000 का लाइबिलिटी था जिसमें 3,200 पब्लिक ने खरीद लिया। तो कितना अंडरराइटर को खुद खरीदना पड़ा डिबेंचर्स, 800। सो 3,200 इंटू 105। जो पब्लिक लोग खरीदते हैं उस पे हम 1.5% का कमीशन लगाते हैं। इफ इट इज इशू अप टू ₹5 लाख तो उसमें अंडर राइटिंग कमीशन निकालते वक्त हम कितना अमाउंट लेते हैं, कितना परसेंटेज लेते हैं, 1.5। So this is coming to 5040. This is coming to 5040. So how much is the total commission payable? How much is the total underwriting commission? Underwriting commission payable. इस दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करो, इट विल बी ₹7140. It will be ₹7140. With this sum is also done. Thank you very much everyone.